کیسا لگ رہا ہے؟ ایک مصروف دن کا آغاز ہو چکا تھا اور ہماری آج کی جو منزل تھی وہ لیک ویو پارک اسلام آباد تھا۔ ہم نکل کھڑے ہوئے گھر سے اور آپ کے سامنے ہیں۔ آج فضا ہمارے ساتھ تھی۔ شوٹ پہ ہم فضا کو ساتھ لے کر آئے۔ آپ کے بچوں کو کوئی دیر تک نہیں سنبھال سکتا، اور یہ پیرنٹس ہی ہیں جو اپنے بچوں کے لیے زیادہ بہتر طور پہ نگہداشت بھی کر سکتے ہیں اور ان کو سنبھال بھی سکتے ہیں۔ آج فضا کی وجہ سے کچھ سامان لانا پڑا ساتھ، جس میں یہ بیگ ہے اور فضا کا سریلیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عباس فضا کا سریلیک تیار کر رہا تھا۔ راستے میں فضا سو گئی جبکہ اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن اتنی گہری نیند سو رہی تھی کہ اس کو فیڈر اگر بنا کر بھی دیا تو وہ پی نہیں رہی تھی، اور عباس اس کو مسلسل پلانے کی کوشش میں تھا۔ یہاں پہ ہم دونوں نے آپ کے ساتھ کچھ باتیں کی، لیکن بیک گراؤنڈ پہ ایک میوزک آ رہا تھا جو پارک میں لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں نے احتیاطی طور پہ یہاں پہ ہماری وائس میوٹ کر دی تاکہ کوئی کاپی رائٹ کا کلیم نہ آئے۔ آپ جانتے ہیں سب کے اس طرح کے ایشوز یوٹیوب پہ آتے رہتے ہیں۔ فضا سو کر اٹھ چکی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ ہم نے فضا سے کہا کہ فضا، ویورز کو السلام علیکم کہو، ہاتھ ہلاؤ، ہائے کہو۔ تب اس نے ہلکی سی اسمائل پاس کی اور ہاتھ ہلایا۔ بس یہاں سے اٹھنے کی تیاری ہے اب، کیونکہ فضا فیڈر پی چکی ہے اور ہم بھی تھوڑا سا ریلیکس کر چکے۔ فضا کی وجہ سے کچھ سامان ساتھ لے کر آئے تھے، اور بچے ساتھ ہوں تو پھر یہی ہوتا ہے۔ اور یہ بیگ ہمارا درد سر، آج تک اس کا سٹیپ ہم سے صحیح نہیں جڑ سکا۔ بس نکل کھڑے ہوئے ہم اپنے منزل کی طرف۔ لیک ویو پارک کی طرف جانا تھا، اور لیک ویو پارک کے ٹکٹ گھر ہمارے سامنے آ چکی تھی۔ ہر طرف سٹال لگ چکے تھے اور لوگ چوک در چوک آ رہے تھے، جبکہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہاں 5 بجے کے بعد زیادہ رش ہوتا ہے، شام 5 بجے کے بعد۔ ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ ہر بندہ اس پارک میں اپنے اپنے انداز میں انجوائے کر رہا تھا۔ کوئی اپنی بکری کروا کر انجوائے کر رہا تھا، کوئی اپنے جھولے چلا کر انجوائے کر رہا تھا، اور کوئی ہماری طرح خوبصورت ویوز کے چکر میں اس پارک میں موجود تھا۔ اور واقعی قدرت کا حسین شاہکار ہے یہ پارک۔ بہت خوبصورت مناظر ہیں، اور آگے چل کر آپ کو اتنے خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا، اور وہ بھی اس ویڈیو کے آخر تک۔ یہ ولاگ آپ کو بڑی پسند آئے گی، اور ان لوگوں کے لیے یہ خصوصی طور پہ تیار کی گئی ہے جو اچھے اور نیچرل ویوز کو، نظاروں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ بہتا دریا ہر ایک کو پسند نہیں، اور اس بہتے دریا کے ساتھ ڈوبتا سورج ہر ایک کو پسند نہیں، لیکن ہمیں بہت پسند ہے، اسی لیے ہم نے آپ کے لیے یہ شوٹ کیا۔ آپ یقین جانیے، جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کے بچے ان چیزوں سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دل کو ایک قرار ملتا ہے، آپ بہت خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے بچے خوش ہوتے ہیں۔ بہت خوبصورت جگہ ہے، اور ہم لوگ ابھی فی الحال یہاں پہ ہیں، بوٹنگ کریں گے۔ واسو میں نے کہا کہ بوٹنگ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ چلیں بیگ ہمارا ادھر ہی پڑا ہے۔ ہاں دیکھ رہے ہیں۔ دن ڈھلنے کو تھا، سورج غروب ہونے کو تھا، اور یہ خوبصورت پانی کا نظارہ جس میں سورج کا عکس آ رہا تھا ماحول کو اتنا خوبصورت بنا رہا تھا۔ آپ یقین جانیے کہ دل چاہتا تھا کہ یہ لمحے یہی رک جائیں، اور میں بہت دیوانی ہوں ایسے مناظر کی۔ عباس کو بھی بہت پسند ہے، اور وہ مسلسل
इस कोशिश में थे कि जैसा मैं चाहती हूँ इन मनाजिर को शूट करना, बिल्कुल वैसे ही हम इन मनाजिर को शूट कर लें। ये दूर तक नजर आने वाला दरिया, ये झील और इसमें चलती कश्ती और उसमें बैठे खुश होते लोग। फिजा के लिए ये सफ़र और ये आउटिंग बहुत अनोखी थी और वो इसको अपने अंदाज में इंजॉय कर रही थी। कहती थी बस मुझे छोड़ दे, मुझे पकड़े नहीं। बहुत अच्छा, तुसी भी आना इधर। रिवर्स देखिए, पीछे का मंजर आपको मजा आएगा, बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। पीछे सारा दरिया है। एक मिनट, अब हम एक साइड से दूसरी साइड की तरफ रवा दवा थे, क्योंकि वहां से आप सिर्फ नज़ारा कर सकते थे। क्योंकि हमारा इरादा था कि हम बोटिंग करें, तो बोटिंग के लिए हमें दूसरे किनारे पर जाना था। अब्बास और मैं निकल खड़े हुए, फिजा को गोद में उठाया हुआ था और दिन ढल रहा था। फिजा एंजॉय कर रही थी, लोग कश्ती रानी के लिए, बोटिंग के लिए जा रहे थे, साथ साथ हम लोग भी थे। और फिर ये मंजर हमारे सामने आया जहाँ पे बोटिंग के लिए लोग मौजूद थे, एंजॉय करना चाहते थे। अच्छा, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत कम लोग इनसे एंजॉय करते हैं। और मेरी ज़िंदगी में ये दूसरी बार कश्ती रानी की। एक बार मैंने की थी, लेकिन वो कश्ती रानी जो थी वो चप्पू से चलती थी और 7, 8, 10 साल पहले की बात है जब मैंने की थी। लेकिन इस बार ये जो कश्ती थी ये मोटर से चलती थी और बस हम चल पड़े फिर। और फिजा साहिबा हमारे साथ बोटिंग के लिए तैयार थी। मुझे डर था कि कहीं फिजा डरे नहीं, लेकिन ये डरी नहीं, घबराई नहीं, खुश हुई। चल पड़े हम लोग साथ। व्यूअर्स बोट की तरफ जाने लगे हैं। अब्बास, मैं और फिजा हम लोग बोट में बैठेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। चलते हैं। हम कश्ती में बैठ चुके थे और अभी कुछ देर के बाद कश्ती चलने वाली थी। और मोटर वाली बोट में ये मेरी पहला एक्सपीरियंस था। बहुत एंजॉय किया, अब्बास ने, मैंने, फिजा ने। और हमने किसी और को नहीं बिठाया था साथ में, तो कुछ लम्हों की बात थी, कुछ देर की बात थी। अब्बास ने कहा कि हमारी प्राइवेसी होनी चाहिए। आप यकीन जानिए कि ऐसे मनाज़िर मैंने सिर्फ ड्रामों में देखे थे, कभी कभी मूवीज़ में देखे थे, लेकिन आज मैं लाइव ये सब कुछ देख रही थी। दरिया, ये सूरज और उसकी जर्दी, उसकी सुर्खी, ये पानी की लहरें सुनहरी, एक ऐसा मंजर तैयार हो चुका था जो आपको अपनी गिरफ्त में ले रहा था। बहुत हसीन लग रहा था सब कुछ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम ये सब कुछ लाइव देख रहे हैं। हम वापस आ रहे थे। कुछ ही देर में कश्ती जो है वो किनारे से लगने वाली थी। एक छोटा सा चक्कर था बस, जो उन लोगों ने हमें दिया और हमने उनको 500 रुपए दिए। वापसी होने के करीब थी और अब्बास साहब यहाँ पे उनको एहसास दिला रहे थे कि आप लोगों ने जितने पैसे लिए हैं उस हिसाब से आपने हमें सैर नहीं करवाई, जबकि ये लोग आदी हो चुके हैं। ले जी, हमारी कश्ती लगने को है पार, और जब कश्ती पार लगती है तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आप अपनी मंजिल पे पहुंच चुके होते हैं। हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके थे, वापसी की तैयारी थी और वापसी की तैयारी के लिए हमने अपने आप को तैयार कर लिया कि बस अब हम यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से निकलने की तैयारी हो गई।
वापसी के लिए हम चलना शुरू हुए। इन मनासिर को भी हमने पिक्चराइज कर लिया। नाज़रीन, आप जब भी कभी आए इस्लामाबाद तो लाजमी विजिट कीजिएगा। यहाँ पे फिजा को मैंने गोद में उठाया हुआ था और मैं यहाँ पे आप लोगों से ही ये शेयर कर रही थी कि अब्बास ने मुझ पे कितना जुल्म किया है कि कैमरा भी मेरे हाथ में है, गिम्बल से मैं वीडियो भी बना रही हूँ और फिजा भी मेरी गोद में है। नाज़रीन, यहाँ पे भी कॉपीराइट का इशू आना था, क्योंकि बैकग्राउंड में ये लेक व्यू पार्क वालों ने जो है अपना एक कुमार सानू साहब बिठाया हुआ था, ठीक है, जो मुसलसल उन्हीं के गाने गा रहे थे। अब मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह का कोई इशू हमारे इस वीडियो के लिए बने, इसलिए मैंने उसको भी म्यूट कर दिया। अगर ये आवाज़ खुली होती तो आप इसको बहुत इंजॉय करते, लेकिन मजबूरी की वजह से बंद करना पड़ी। शाम होने को थी और हमें भूख सता रही थी, क्योंकि नाश्ते के बाद हमने दोपहर को लंच नहीं किया था। हम लोग अपने काम के लिए निकल आए थे और फिजा ने भी सिरिलैक पिया हुआ था। यकीनन इसको भी भूख थी, लेकिन हम बस अब चाहते थे कि किसी तरह वापसी कर लें। लेकिन इस मंजर से जाने का दिल नहीं चाह रहा था। यहाँ पे अब्बास ने कहा कि थोड़ी ऊंचाई है, थोड़ी हाइट से भी इस मंजर को कैप्चर किया जाए। मैंने कहा अब्बास जब कह रहे हैं तो फिर करना ही पड़ेगा। बस जी, फिर हम चल पड़े और वाकयातन यहाँ से एक हसीन मंजर मिला। कसम से दिल चाह रहा था कि बस बैठे रहो यहीं पे। बहुत खूबसूरत मंजर था, बहुत हसीन मंजर, जिसे देखकर दिल को करार आ रहा था, सुकून आ रहा था। बार बार जो दिल है ना, वो अपने परवरदिगार के शुक्र में झुक रहा था कि उसने हमें कैसी कैसी नेमतें दी है। हम वापस जा रहे थे क्योंकि दिन ढल चुका था, दिन ढलने का आगाज हो चुका था। लेकिन हर कदम पे एक नया मंजर सामने आता था और हम आपस में यही कहते थे कि अभी थोड़ी देर और रुक जाते हैं और कैप्चर करते हैं। और अब्बास ने कहा कि अब गिम्बल मुझे दो और मैं ये सब कुछ खुद कैप्चर करूंगा। तो ये तमाम के तमाम जो सूरज गरूब होने के मंजर हैं, अब्बास ने कैप्चर किए। फिजा तो जैसे माँ से भी ज्यादा दीवानी, लगता था सूरज के पीछे भाग रही है, सूरज को पकड़ने की कोशिश कर रही है। और जब बुलाते थे तो कहती थी जा, मतलब मुझे ना छेड़ो, जाओ। तो ये तो कमाल हो गया। हर मंजर दिल में उतरने वाला था, हर मंजर बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन। हमारे पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं, अगर कमी है तो वो हमारे अंदर है। इस कमी को हम सब ने मिलकर दूर करना है। यहाँ पे एक मंजर छूट गया था और वो मंजर बहुत हसीन था, क्योंकि फिजा को प्यास लग गई थी। परिंदे उड़ रहे थे ढेर सारे और यही मंजर था। वो उड़ते परिंदों के साथ अगर कैप्चर हो जाता ना तो कमाल हो जाना था। कोई बात नहीं, बच्चों को भी राजी रखना पड़ता है, जो हम रख रहे थे। और दिन हमें अल्लाह हाफिज कह चुका था, सूरज हमें अल्लाह हाफिज कह चुका था। लगता था जैसे सूरज को जमीन से प्यार हो गया और वो जमीन में थिसता जा रहा था। और हमारे लिए ये मंजर इतना हसीन था कि जैसे कुछ याद ही नहीं था। बस हम मुसलसल शूट करते जा रहे थे, मुसलसल शूट करते जा रहे थे। और अब्बास कहते थे कि साइमा
اس منظر کو اور کس طرح سے کیپچر کیا جائے کہ اور حسین آ جائے. واپسی ہو چکی تھی ہماری. یہ سفر ایک یادگار تھا، آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی.